This is first session of network programming. In this session we'll discuss about prerequisites for network programming. We'll discuss about installation of Linux. We'll discuss about C programming on Linux platform, and we'll discuss about basic Unix commands. So let's come on to the prerequisites part. क्या क्या चीज़ें हमें पहले से चाहिए होती हैं. If we talk about the prerequisites, here the first thing that we require is we should know about basic commands of Unix. दूसरी चीज़ हमें पता होना चाहिए Unix पे टेक्स्ट एडिटर कौन कौन से होते हैं, C कंपाइलेशन कैसे होते हैं, और हमें पता होना चाहिए कि सॉकेट क्या होता है और कैसे काम करता है. Now let's start with Unix, how we can have Unix on our machine. So सबसे पहले तो इसके लिए हम ये समझते हैं कि होम पीसी के अंदर Linux इंस्टॉल कैसे करेंगे. If we talk about this, यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं. Either we can have dedicated machine, that means the machine is installed with Linux. कंप्यूटर के अंदर और कोई दूसरा OS नहीं है, हमने सीधा Linux की CD लगाई और Linux इंस्टॉल कर दिया. Then it is a dedicated machine. हमने कहा नहीं, कंप्यूटर के अंदर अदर OS भी होना चाहिए और Linux होना चाहिए. So for example, in most of the PCs we have Windows. So हमको ज़्यादातर समय विंडोज़ की रिक्वायरमेंट होती है, बट केवल नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए हमको अगर Linux इंस्टॉल करना है, इन दैट केस वी कैन हैव अ ड्यूअल बूट. वी हैव अदर ऑप्शंस आल्सो, लाइक देयर आर very much availability of the softwares like virtual machines. You can have VMware, you can have Zen kernel, you can have hypervisor, you can have Microsoft Virtual PC, or you can have some open source products like your Oracle's VirtualBox, like that. So इस तरीके के प्रोडक्ट्स के ऊपर आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर अपने हिसाब से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक है. सो अगर मेरा काम Linux का बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर अगर हमें रिक्वायरमेंट विंडोज़ की होती है और हमें कुछ चीज़ों के लिए अगर Linux की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस वी कैन हैव द वर्चुअल मशीन ऑल्सो. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इन सब के अलावा हमारे पास एक और रास्ता होता है जिसको हम बोलते हैं लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम. लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, वी हैव अ CD और अ DVD मीडिया, जिसको कि सिस्टम में लगा करके अगर उस DVD मीडिया या CD मीडिया से हम बूट कर देते हैं तो सिस्टम जो है वो Linux में बूट हो जाता है. अदरवाइज आपका सिस्टम विंडोज में चल रहा होता है. सो दैट मीडिया इज सफिशिएंट एनफ टू प्रोवाइड यू दैट काइंड ऑफ इंटरफेस. What I suggest is go for the virtual machine part, because if you go for the virtual machine, here you have multiple options available. आप एक की जगह पे 2 कंप्यूटर या 3 कंप्यूटर भी रख सकते हैं और उनके बीच में कम्युनिकेशन करा करके आप नेटवर्क प्रोग्राम्स को टेस्ट कर सकते हैं, that whether they are actually running on network or they are running on only one PC. So you can test the network programs on virtual machines. That is a very good idea. If you have a network, अगर आप लैब में काम कर रहे हैं और लैन पे सिस्टम्स आपके पास अवेलेबल हैं, in that case go for dedicated machine. Just take one dedicated server, and onto that dedicated server you can install virtual machine, you can install Linux, so that all the members of the lab can access that system directly. Okay. So let's come to how we install a virtual machine, how actually the virtual machine can be created, and how to work on that. Just see.
This one is Oracle's VirtualBox. इसमें सबसे पहले आप क्लिक कीजिए न्यू पे, एंड ऑन दिस न्यू you will come to new virtual machine wizard. Now select operating system and give the name of machine as per your choice. For example, I want to give your name as NW Programming underscore Linux. So whatever the Linux version you want, you can give here. यहाँ पे Linux version या ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन करने का बस इतना ही पर्पस है कि यहाँ पे जो आइकन आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसी के हिसाब से इसको दें. ठीक है. Now select next. Here it is asking how much RAM you want to provide to this virtual machine. इसको थोड़ा ज़्यादा रखिए, बाद में आपको रिक्वायरमेंट हो तो कम कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, बट थोड़ा सा इनिशियली ज़्यादा रखिए सो दैट इंस्टॉलेशन में टाइम ज़्यादा न लगे. ओके. नाउ इट इज़ आस्किंग फॉर द हार्ड डिस्क, वेदर यू वांट टू क्रिएट अ न्यू हार्ड डिस्क और यू वांट टू यूज एग्जिस्टिंग वन. एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है कि अगर आपने पहले कभी वर्चुअल मशीन बनाई थी और आप उसकी हार्ड डिस्क यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. अगर आपने पहले कभी वर्चुअल मशीन नहीं बनाई थी और आप फ्रेश हार्ड डिस्क यूज करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो. सो दीज आर द हार्ड डिस्क दैट वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड ऑन दिस मशीन, बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज दीज. आई एम गोइंग टू गेट अ न्यू वन. ओके. सो जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट न्यू हार्ड डिस्क. Now it is asking about your hard disk. Your hard disk can be of two types. Either it is fixed size or dynamic size. Fixed size या dynamic size में डिफरेंस क्या है? आप अगर फिक्स साइज की हार्ड डिस्क डिफाइन करते हैं तो उस हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है कि एक स्पेसिफिक साइज का आपका स्पेस एलोकेट हो जाता है. ठीक है. आपने 10 GB कहा, आपकी मेन हार्ड डिस्क में से वो 10 GB गए और एक 10 GB की फाइल वहां क्रिएट हो गई है. अगर आप डायनेमिक कहते हैं तो जितना आप यूज करते जाएंगे डायनेमिकली वो फाइल उस हिसाब से बड़ी होती जाएगी. सपोज आपने अपर लिमिट तो 10 GB डिफाइन की थी बट आप उसमें से 2 GB यूज कर रहे हैं तो फाइल का साइज बहुत बड़ा नहीं होगा. इट विल बी ऑफ 2 GB ओनली. ओके. Click on next. Here it is asking where you want to keep this hard disk. So I want to keep it in my E drive. Here NW Programming underscore Linux, and just change the size whatever you want. जैसे मैंने 16 GB सिलेक्ट किया है. इट शुड बी एटलीस्ट 10 GB. Now what you have to do is just come to the settings part and in setting come to storage. Here storage CD DVD is empty. यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए होस्ट ड्राइव. ठीक है. होस्ट ड्राइव सेलेक्ट करने से क्या है कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी सीडी या डीवीडी लगाएंगे वो सीडी या डीवीडी इसको मिल जाएगी. ओके. नाउ क्लिक ऑन स्टार्ट एंड पुट द सीडी इन योर सीडी ड्राइव. ओके. उसके बाद यहाँ पे ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन जैसे आप लाइनक्स का करते हैं बिल्कुल उसी तरीके के आगे के स्टेप्स होंगे. ठीक है. After installing Linux, if you start it, it will be coming like this one. Here you see this is pre-installed Linux machine. So we'll be working on this machine only. Will not be installing it again.
So machine is being booting up. Now let's move ahead. अब हमें यूनिक्स की कुछ बेसिक कमांड्स आनी चाहिए. ये दूसरी बात है ये प्रीरिक्विजिट्स के अंदर. यूनिक्स की बेसिक कमांड्स कौन सी आनी चाहिए? डायरेक्टरी क्रिएट करना, उसके अंदर स्विच करना, ठीक है, कहीं से भी अपनी होम डायरेक्टरी में मूव करना, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखना, फाइल क्रिएट करना, फाइल को कॉपी करना, फाइल को मूव करना, रीनेम करना, ठीक है, किसी पर्टिकुलर फाइल को किसी दूसरी डायरेक्टरी में मूव करना, किसी कमांड का मैनुअल चेक करना, ठीक है. सो दीज आर वेरियस टास्क जिसके लिए हमें कमांड्स आनी चाहिए, ठीक है. एंड ये कमांड्स क्यों आनी चाहिए? बिकॉज जब हम काम कर रहे होंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करना ज़्यादा आसान होता है, एंड बिकॉज इट टेक्स लेस बैंडविड्थ टू ट्रांसफर, ठीक है. एंड सेकेंडली अगर हम बात करते हैं रिमोट मशीन पे वर्क करने के लिए, तो जितनी कम बैंडविड्थ यूज़ करें उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है. दैट्स वाई व्हाट वी डू इज वी गो फॉर all these commands. We'll try to learn all these commands. So let's come on to the virtual machine. Here we have a user, virtual learning network, and I am giving the password of the user, and now here you see when the system gets booted you will be having option of a terminal, ठीक है. तो अगर आप GUI में सिस्टम बूट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप कमांड्स नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, यहाँ पे भी आपके पास टर्मिनल का ऑप्शन होता है, ठीक है. जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड गो टू टर्मिनल, ओके. And here you can execute the commands, whatever the command we are going to discuss. Okay. Now, after learning all these commands, we'll be coming on to these commands later. After doing it, what we have to do is we have to understand about text editor. So here are so many text editors available. So we'll be using VI editor, which is the most popular one, and it can be accessed through command line also. That's why we'll be preferring it. So let's come back to the command prompt, and here let's see what are the commands available. ls से आप देख सकते हैं डायरेक्टरी लिस्टिंग. मुझे सपोज डायरेक्टरी लिस्टिंग के अलावा इसमें परमिशंस और इसकी डिटेल्स भी देखनी है, तो यू कैन यूज ll. ll gives you directory listing along with permission, inode number, date created, and date last modified, and the user and group name for which it is permitted. Now I am creating another folder here. So एक डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए mkdir कमांड होती है. mkdir and then directory name. I am putting here C programs. ओके. सपोज अगर आपको नाम के बीच में स्पेस ही डालना है तो यू कैन गिव इट लाइक दिस, एंड हियर यू सी C space programs. ओके. नाउ अगर हम एक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो cat कमांड होती है इसके लिए, but cat then redirection and
dot c. For example, I am giving here add dot c. Okay, now so we have given a message, and after ending the message I have completed the program. Just press Ctrl D once. ठीक है, अब आपका ये प्रोग्राम add.c राइट हो चुका है. ठीक है, now just write here cat add.c and you can see the code. ठीक है, मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे कुछ कमी रह गई है, मुझे इसमें कुछ और ऐड करना चाहिए. So I want to append this. In that case, what we can do here, you can put double redirection. Okay. Now here I am putting a comment. This code is developed for PCTI group. Okay. Now just see cat add.c and you can find whatever we have written is added at the end. ठीक है, so in this way what we can do, हम किसी भी फाइल के अंदर कोई कंटेंट लिख सकते हैं. ठीक है, now the question arises, मुझे इसमें से कोई एक स्पेसिफिक लाइन जो है वही चेंज करनी है, बीच में से कोई लाइन एडिट करनी है. देन क्या ये पॉसिबल है कि मैं यूजिंग कमांड लाइन ही इसको एडिट कर पाऊँ? देखिए पॉसिबल तो है, बट इट विल नॉट बी रिकमेंडेड. ओके, go for the VI editor and you can find here your code, whatever the line you want you can select, you can alter, you can copy, you can paste also. Okay, अब मैं इस फाइल को रीनेम करना चाहता हूँ. एड से लग रहा था कि एडिशन है और पता चला एडवर्टीजमेंट निकला. So I just want to put here ADV instead of add. Okay, तो क्या करें इसके लिए? Here we have mv command that helps you in renaming file. So here you see add.c is now adv.c. Okay, now I just want to create another copy of the same file, so I can use cp so here you see two copies of the same file has been created. Okay, now what I want to do is I want to delete the original one, that is add.c. so here we can use rm add.c. okay, अब अगर मैं चाहता हूं कि नहीं मैं पूरी C प्रोग्राम्स वाली डायरेक्टरी ही डिलीट करना चाहता हूं और उस डायरेक्टरी के अंदर कोई कंटेंट नहीं पड़ा है, तो rmdir यूज कर सकता हूं. बट
अगर उसके अंदर कोई कंटेंट पड़ा है फिर भी मुझे उसे डिलीट करना है, तो आई कैन यूज rm स्पेस -r स्पेस C programs. Press enter. You can find the file, the folder has been deleted along with the content. Okay. Suppose you want to search something. You want to search a specific word in a given file. So for that we use grep command. Okay. So grep space then content. For example, I am creating a file of history, that is whatever the commands I have executed that are transferred to a file HIST, sorry, HISTORY is transferred to HIST. Okay, so here you see 50 lines are there. अब मुझे इसमें से कोई स्पेसिफिक चीज़ सर्च करनी है. फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव यूज्ड add.c अगेन एंड अगेन. ठीक है, मैं इसको सर्च करना चाहता हूँ ऐड कितनी बार आया है. ठीक है, grep then file name then the keyword you want to search, or cat then file name then pipeline grep the keyword you want to search. For example add में सर्च करना चाहता हूँ तो add लिखा एंटर मार दिया. You can find that which are the lines where add keyword is there. ठीक है, इसके अलावा अगर सपोज आप ये भी चाहते हैं कि कौन सी लाइन में आता है वो भी बताया जाए, तो you can know that line number 34 has 34 space cat redirection add.c and so on. ये लाइन नंबर जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने लाइन नंबर लिखा हुआ या जैसे हिस्ट्री के अंदर आया था वही रहे. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप 2-3 लाइनें मर्ज कर देते हैं. इन दैट केस ऑल्सो यू कैन फाइंड हियर दैट इट विल शो द एग्जैक्ट लाइन नंबर. Now come to VI editor. In VI editor we have editor, that's why it is an editor, that's why it has so many things available with us. तो इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या है, किसी एडिटर के अंदर कॉपी पेस्ट कट ये 3-4 इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं. सो किसी चीज़ को कॉपी करना है, suppose I want to copy 5 lines, so just press 5 then 2 times y. Okay, 5 lines has been copied from the current location, means जहां भी आपका कर्सर है वहां से नीचे की तरफ 5 लाइनें कॉपी हो गई हैं. ठीक है, अब इसको जहां भी पेस्ट करना चाहते हैं कर्सर को वहां ले जाइए. ठीक है, एंड जस्ट प्रेस P. आपको P 2 बार 3 बार नहीं दबाना है, एक बार P प्रेस करेंगे इट विल ऑटोमेटिकली गेट पेस्टेड. अगर आप 2-3 बार P दबा जाते हैं तो ये 2-3 बार पेस्ट हो जाएगा. ओके, नाउ सपोज आई वांट टू कट 3 लाइंस फ्रॉम हियर. सो फॉर कट वी हैव 3 dd. dd is the cut command and how many lines you want to cut that you give before that. अगर आप नहीं देते हैं तो सिंगल लाइन कट होगी. अगेन अगर पेस्ट करना है तो P प्रेस कर दीजिए, इट विल गेट पेस्टेड. ओके, I have deleted 10 lines and now if I want to paste P. In the same manner लाइंस की जगह पर मुझे वर्ड्स अगर डिलीट करने हैं, सपोज करंट लोकेशन से मुझे 3 वर्ड्स डिलीट करने हैं, तो 3DW that will delete 3 words from current location. Okay, अब मैंने गलती से डिलीट कर दिया था, I want to undo that. So what I can do,
1 step undo, so 1 and U. अगर आपको 5 steps पीछे जाना है तो just press 5 and U. It will automatically go 5 steps back. Okay? In the same way, if I want to delete one character, for this X is the code. Okay, now I want to delete 10 character, so 10X, it will delete 10 characters from current position. Okay, I want to go to line number 1. Wherever I am, वहां से अगर मुझे लाइन नंबर 1 पे जाना है या किसी स्पेसिफिक लाइन नंबर पे जाना है, जस्ट प्रेस कोलन एंड देन लाइन नंबर. फॉर एग्जांपल मैं लाइन नंबर 10 में जा रहा हूं. ओके, एंड यू विल ऑटोमेटिकली रीच टू द लाइन विच एवर यू हैव रिटन. आई वांट टू सर्च अ स्पेसिफिक कीवर्ड. फॉर एग्जांपल इसमें ऐड बहुत बार आया है, तो आई एम गोइंग टू सर्च ऐड. यूज स्लैश देन ऐड एंड यू कैन फाइंड जितनी जगह ऐड लिखा हुआ है वो सब हाईलाइट हो गया. एंड दोबारा स्लैश लिख के एंटर मार दीजिए, आप नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच जाएंगे जहां भी सर्च कीवर्ड आपको मिला था फर्स्ट टाइम. ओके, नाउ आई वांट टू एडिट समथिंग. फॉर दिस आई हैव टू गो टू इंसर्ट मोड. यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है तो इसके लिए इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा, और इंसर्ट मोड में जाने के लिए कमांड होती है आई. आई वांट टू गो बैक टू द कमांड मोड. यूज एस्केप. नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू सेव दिस फाइल. टू सेव :w इज द कमांड. नाउ पहले से फाइल बनी हुई थी, उसको सेव करना चाहते हैं तो :w से काम हो जाएगा. बट फाइल पहले से नहीं थी, मुझे या इसका नाम चेंज करना है, तो :w के बाद इसका जो भी नया नाम देना है वो दे दीजिए. ठीक है. अगर आपने कुछ एडिटिंग कर दी थी और बिना उसको सेव किए बाहर निकलना चाहते हैं, तो :q एंड एक्सक्लेमेशन, that helps you in quitting without saving the file. ठीक है. :q से आप डायरेक्टली क्विट करते हैं. $wq is used to save and quit. Now अगर आपने सपोज कोई फाइल बनी हुई थी उसके ऊपर ओवरराइट करना है, तो बाय डिफॉल्ट जब $w से आप फाइल को सेव करने जाएंगे तो ये कहेगा कि ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. ठीक है. In that case, what you can do, :w exclamation and then test. So here you find that file is overwritten. Okay. Now, if I want to quit, just use WQ. It will save and quit. Now here you find two files are there, history and test. I'm just removing the two files. Use rm and the file names. Okay. So these are the basic tasks that we can perform on Linux environment. इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे कि अदर देन VIM कौन कौन से एडिटर्स हो सकते हैं. सो हियर वी हैव नैनो एडिटर. अगर आपने पाइन मेल यूज किया हो या उसके कमांड्स आपको याद हो तो यू कैन गो फॉर नैनो एडिटर. दैट इज अ वेरी गुड एडिटर. Emacs is another one, and Xemacs is improved version of the Emacs. इसके अलावा कुछ आपके पास ग्राफिक एडिटर्स भी होते हैं, जैसे आप gedit यूज कर सकते हैं, kwrite यूज कर सकते हैं. ठीक है. अगर आप सपोज GUI में ही काम करना चाहते हैं, in that case you can go for gedit. This
is one editor, and you can go for kwrite, it is another editor. ठीक है, ये दो बेसिक एडिटर हैं जो पहले से ही होते हैं इसके अंदर, you don't have to install them separately. इन दोनों एडिटर्स की एक खास बात है कि अगर सपोज आप सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं और आपने इसे .c एक्सटेंशन से सेव कर दिया है, फॉर एग्जांपल add.c, ओके, तो ऑटोमेटिकली ये कलर्स चेंज करता चलेगा. ओके, the same is with this one also. This one is also changing the color, but the color configuration for this is very much like dark colors are used. So ये green color का जैसे हो गया है, या ये this one is blue and the rest of the part is black. And secondly, you can have code folding also. So whatever the editor you want, you can use that. ठीक है. In next part of the session, we'll discuss about the things like how we can execute C program on Linux platform and what are the prerequisites for executing C program on Linux platform, and we'll discuss about transport layer fundamentals also. That's all for now. Thank you.